Hello friend, welcome to my channel NEET Nation. So in a previous video we will discuss about the important terms of genetics. Now in this video we will discuss about the laws of Mendel's or the laws of inheritance. Inheritance के laws पढ़ेंगे या principle of inheritance पढ़ेंगे, जो तीन principle है जिसको मेंडल ने proposed किया था. So we'll discuss about the laws or the principle of inheritance. That is the principle of inheritance, जिनको हम लोग मेंडल्स लॉ भी बोलते हैं. मेंडल्स लॉ, ठीक है, क्लियर है. और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. सो दिस लॉ इज गिवन बाय द मेंडल. द मेंडल गिव द थ्री लॉ ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे ही गिव द थ्री लॉज. उन्होंने तीन लॉ दिए थे. वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट दिस लॉज. द फर्स्ट लॉ विच इज गिवन बाय द मेंडल इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. जो पहला लॉ दिया गया था दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस. व्हाट ही एक्सप्लेन इन दिस लॉ. मेंडल ने क्या बताया इस लॉ में, दैट इज when we start with the pure line. जब हम स्टार्ट करेंगे, हमने पहले ही बताया था कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ही ऑलवेज स्टार्ट विद द प्योर लाइन. मेंडल हमेशा प्योर लाइन से स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट विद द प्योर लाइन, व्हेन वी स्टार्ट विथ प्योर लाइन इन फर्स्ट जनरेशन, clear, in F1 or first generation, the progeny which shown the characteristics or the characteristics which is shown is dominant one. So when we start with the pure line in F1 or first generation, the characters which is shown are dominant. क्लियर है. क्या बोला गया है कि when we start with the pure line, जब हम प्योर लाइन से स्टार्ट करेंगे इन F1 और फर्स्ट जनरेशन, द कैरेक्टर इन F1 और फर्स्ट जनरेशन, द कैरेक्टर विच इज सोन आर डोमिनेंट. जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में हमें देखने को मिलेंगे, दिस आर कॉल्ड द डोमिनेंट कैरेक्टर. वो डोमिनेंट होंगे. क्लियर है. सो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस. जैसे कि विल से सपोज when we start a pure line, तो हमने प्योर लाइन में स्टार्ट करना है. तो प्योर लाइन के हिसाब से क्या करना होगा, दैट इज वी हैव टू टेक द प्योर टॉल विथ क्रॉस विथ द प्योर डॉर्फ. वी ऑलवेज टेक प्योर. सो प्योर टॉल दैट इज कैपिटल T their genotype, and pure dwarf is having a small t their genotype. When we make a cross, so this is the parent generation. क्लियर है. सो द गैमेट विच इज फॉर्म्ड, जो गैमेट इसका बनेगा कैपिटल T then small t, they are the two gametes which is going to be formed. So now this is the gamete formation. Now in F1 means when we cross this, जब हम इसको क्रॉस करेंगे, that is the gamete from male parent, that is capital T and gamete from female parent, that is small t. Clear है. When we cross them, capital T small t, capital T small t, capital T small t, capital T small t. Clear है. So what is the phenotypic ratio? अगर हम phenotypic ratio की बात करते हैं, then phenotypic ratio is what? This is the tall because of presence of dominant. This is also tall. This is also tall. This is also tall. So the phenotypic ratio is 4:0. That is
4 is tall, clear है, and dwarf is 0, tall is to dwarf, clear. Now what about the genotypic ratio? Genotypic ratio is about also this is the tall but heterozygous tall, clear है, that is heterozygous tall but this tall is the heterozygous, so they are the heterozygous tall. So what we get from first generation, हमको first generation से क्या मिला, that is the character which is shown is the tall, जो कैरेक्टर हमको देखने को मिले, चारों के चारों प्लांट हमारे क्या हुए, tall. So the character which is shown is tall, so the tall is the dominant, so that why the tall is dominant character. So मेंडल ने क्या बोला, डोमिनेंट कैरेक्टर्स. सो मेंडल ने क्या बोला कि व्हेन वी स्टार्ट विद द प्योर लाइन, जब हम प्योर लाइन से स्टार्ट करेंगे तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शोन होंगे वो क्या होंगे, डोमिनेंट. सो F1 जनरेशन में हमको कौन से कैरेक्टर शो हुए, ऑल आर द टॉल, सो द टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, क्लियर है. सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ. हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे. द सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. Law of segregation. We'll start with the law of segregation. Now, law of segregation. What Mendel say about the law of segregation? Mendel say, sorry, during the gamete formation, each allele of a gene is segregated, or the two allele form is going to be moved into two different gamete. क्लियर है. मीन्स गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हर एलील, एक जीन के चाहे जितने भी एलील होंगे वो दे आर गोइंग टू बी सेग्रीगेटेड, वो सेपरेट हो जाएंगे अपने आप से. या हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जो टू एलील होंगे, बोथ टू एलील इज मूव इनटू द टू गैमेट, दोनों अलग अलग गैमेट में मूव करेंगे. ठीक है. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से दैट इज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन टू एलील, और मोर देन टू होंगे तो मोर देन टू हो जाएंगे, टू एलील ऑफ a gene get segregated. जो दो एलील होंगे या दो से ज्यादा होंगे, और विल से एलील ऑफ अ जीन आर गेट एलील्स, विल से अगर टू कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको हटा सकते हैं, एलील्स ऑफ ए जीन गेट सेग्रीगेटेड, एलील्स जो होंगे वो सेग्रीगेटेड होंगे. कैसे? सो फॉर एक्सप्लेनेशन दिस विल मेक, सपोज हमने क्या लिया था, प्योर टॉल, दैट इज प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ, क्रॉस विद द प्योर डॉर्फ, दैट इज कैपिटल टी विद द स्मॉल टी. तो गैमेट फॉर्मेशन के समय व्हेन इट्स मेक द गैमेट, दिस टी इज गोइंग टू बी सेपरेटेड एंड फॉर्म वन गैमेट, दैट इज वन गैमेट हैविंग capital T, and another is also going to be segregated and form another capital T. Similar with that, suppose this is the one gamete form small t and another gamete also form small t. Both are going to be separated. दोनों जो एलील थे वो दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेटेड हो रहे हैं, सेग्रीगेटेड हो जा रहे हैं. क्लियर है. एंड विल टेक अनदर, ये तो हमारा होमोजाइगस कंडीशन में होगा. विल टेक द हेट्रोजाइगस, अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन लेते हैं, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी. जो एलील है वो किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में. सो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, द वन गैमेट फॉर्म विद द कैपिटल टी, और दूसरा गैमेट जो बनेगा दे हैविंग अ स्मॉल टी. क्लियर है. जो एक गैमेट बनेगा वो कैपिटल टी के साथ बनेगा, और जो दूसरा होगा वो स्मॉल टी के साथ बनेगा. दैट मीन्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन
द एलिल इज नॉट गोइंग टू बी ब्लेंड विथ ईच अदर, मिक्स नहीं होंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, वो सेपरेटेड हो जाएंगे, सेग्रीगेटेड हो जाएंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है? सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन। इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन भी बोलते हैं। नाउ दिस लॉ इज ऑल्सो नोन लॉ ऑफ प्योरिटी। इसको एक और नाम से बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। क्या क्यों बोलते हैं हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी? आप देखिए, दैट इज दिस पेरेंट, ये जो पेरेंट था, दिस आर द हेट्रोजाइगस, ये जो पेरेंट हमारा था हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, बट व्हेन द गैमेट इज फॉर्म्ड इट हैविंग अ सिंगल टाइप ऑफ एलील, इसमें एक सिंगल टाइप जो क्या है, प्योर टॉल है। दिस इज द गैमेट ऑफ प्योर टॉल एंड दिस इज द गैमेट ऑफ प्योर डॉर्फ। तो इसके गैमेट के अंदर जो हमारे एलील आए हैं वो क्या है, प्योर टॉल के और प्योर डॉर्फ के। सो भले ही इनके जो पेरेंट है वो क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन जब इनके गैमेट बन रहे हैं, दिस गैमेट इज हैविंग अ प्योर एलील, इनका जो एलील होगा वो क्या है, प्योर है। जैसे कि ये देखिए प्योर टॉल के एलील है एंड दिस इज द एलील ऑफ प्योर डॉर्फ। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, विच इज द दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, विच इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ थर्ड लॉ, मेंडल के जो थर्ड लॉ है, दैट इज विल डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का जो थर्ड लॉ है, विच इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने मेंडल के फर्स्ट और सेकेंड लॉ को पढ़ा एंड फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ वी डिस्कस अबाउट द लॉ बाय अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. Independent assortment. This is the third law of Mendel, that is law of independent assortment. For both law, Mendel first and second, that is the law of dominance and law of segregation. For that we can explain it by a monohybrid cross. हम दोनों इस लॉ को हम लोग मोनोहाइब्रिड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वी हैव टू टेक द डाइहाइब्रिड क्रॉस. हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस करना होगा एंड देन वी हैव टू एबल टू अंडरस्टैंड क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दैट इज नाउ द ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन the alleles are going to be independently assort one allele of or each allele of a gene independently assort with another allele of another gene. दूसरे जीन के दूसरे एलील के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा. दैट इज हम लिखते हैं इसको, दैट इज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन each allele of a gene, एक जीन का हर एलील जो है ऑफ ए जीन assort independently with each allele of अदर जीन. क्लियर है? मीन्स गैमेट फॉर्मेशन के टाइम एक जीन का हर एलील दूसरे जीन्स के हर एलील के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा. क्या है, कैसे? हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देन वी आर एबल टू बी अंडरस्टैंड इट वेरी इन बेटर मैनर. हम लोग दूसरे एक एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर मैनर में समझ में आएगा. और मैंने क्या बताया, इसके लिए हमको वी हैव टू बी मेक डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना होगा. ठीक है, विल टेक कैपिटल टी दैट इज द प्योर टॉल विद द विल सपोज वी टेक द एक्सियल कैपिटल ए दैट इज द एक्सियल फ्लावर पोजिशन क्रॉस with the small t that is the dwarf and small a which is the terminal. Now
how this gamete, this is the parent generation. Now gamete, how the gamete is formed? The gamete is formed because they both are the same type, एक ही तरह के हैं, इसलिए gamete जो हमारा बनेगा, for these two there is the one capital T and for these two there is the one capital A. So these are going to be 4 gamete. यहां से हमारे gamete क्या बनेंगे? 4. That is TA is having a 4. क्लियर है? इसको मैं एक और तरीके से बनाकर दिखा रहा हूं. That is you are able to be understand it. इसको हम एक तरीके से बनाते हैं. That is this T is going to be react with capital A. This T is with the capital A. Now this T is already gone with this. So this T is gone with this capital T, capital A, and this T is gone with this A, that is capital T. So how many gamete is formed? 4. That is capital T, capital E, capital T, capital A. Clear? That is 4 gamete is formed. Similar with that. Clear hai? That is this T is gone with the small t, small a. This T is also crossed with the small t, small a. Now this T is gone with the small t, small a, and now this T is also gone with this one, capital T, small t. So 4 gamete is going to be formed. This is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. The 4 gamete is going to be formed. Now in F1, this is about gamete formation. Now we'll discuss it in F1 form. हम इसको F1 फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह से ये गैमेट रिएक्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज द F1 प्रोजेनी? हमारे जो F1 प्रोजेनी है वो क्या है? विल मेक 4, ठीक है, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल ए. दिस इज फादर्स and this is mother gamete. 1, 2, 3, 4. Suppose we'll take. Now this is the small t, small a, small t, small a, small t, small a, small t, small a. Clear है? So what we get? Capital T, small t, capital A, small a. Clear? And in all what we get, whatever may be, हम कहीं पर भी लेते हैं, capital T, small t, capital A, small a, capital T, when we are cross, capital T, small t, capital A, small a, that is all 16. जितने भी 16 होंगे, all having a capital T, small t, capital A, small t. So इनका जो phenotypic ratio होगा, what is their phenotypic ratio? Is about tall and axial. क्या होगा? Tall and axial. और इनका रेशियो क्या होगा? That is 16:0. Clear है? The ratio is 16:0 and all are the tall and axial. Clear है? And genotypic ratio is also 16:0. Genotypic is also 16:0, but this 16:0 is about the heterozygous tall and heterozygous axial. So heterozygous tall and axial, both are heterozygous. Heterozygous tall होगा और heterozygous axial होगा. Clear है? So this is the heterozygous, both are 16. Now in F2 generation, what is going to be done in F2 generation? F2 generation में किस तरह से ये होगा? Now we are able to understand it. तो F2 generation, what is done in F2? We having a selfing. हम लोग selfing करेंगे. क्या? एक ही generation के किसी 2 इंडिविजुअल के साथ हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस. सो इन F2 जनरेशन विल जस्ट मेक इट इन F2, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इससे भी हमको पता चल रहा है, बट इन व्हेन वी डिस्कस इन F2 वी आर एबल टू बी अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. हम इसको अच्छे से और समझ पाएंगे. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? सेल्फिंग क्या था हमारा? कैपिटल टी, कैपिटल ए विद द विल मेक इट कैपिटल टी, स्मॉल टी विद द कैपिटल ए and small a, cross with the another progeny, capital T, small t, capital A, small a. Clear है? So this is the parent of selfing. ये selfing के parent है. After the selfing it is the parent generation. So इसका gamete क्या बनेगा? Now you have to understand it. Gamete formation you have to understand it properly. अगर हम gamete की बात करते हैं तो gamete कैसे बनेगा? This capital T is assort with this capital T is independently assort with the A. ये capital T इस capital A के साथ भी assort करेगा and then form capital T, capital A.
this capital T is also assort with this small a, so it form capital T small a. हो गया. Now this small a is assort with capital A also, so this small t is assort with capital A also, and this small t is also assort with the small a. Means ये कैपिटल T डिवॉइड ऑफ की एंड उसके नेक्स्ट जनरेशन में क्या है डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि उसका जो दूसरा कैरेक्टर है, दूसरे जीन का जो एलील है वो डोमिनेंट फॉर्म में है या रिसेसिव फॉर्म में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा दूसरे जीन के दूसरे एलील के साथ, जो कि हमने लिखा है. क्या बोला है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच एलील ऑफ ए जीन, एक जीन का एलील क्या है, ये एक जीन के एलील हो गए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विथ ईच एलील ऑफ अदर जीन, ये दूसरे जीन के एलील हो गए. तो एक जीन का हर एलील दूसरे जीन के हर एलील के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज कैपिटल T इज असॉर्ट विथ कैपिटल A ऑल्सो एंड स्मॉल a ऑल्सो. स्मॉल t इज ऑल्सो असॉर्टेड विथ द कैपिटल T ऑल्सो एंड स्मॉल t ऑल्सो डिवॉइड ऑफ व्हाट दे हैव, क्या है उनके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट दे आर गोइंग टू बी असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विथ ईच अदर, सेम विथ द हेयर, सेम गैमेट बनेंगे. सो सच कंडीशन इज नोन एज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्लियर है. सो दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ आवर मेंडल्स, दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो क्या पढ़ा हमने, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच एलील ऑफ ए जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विथ ईच एलील्स ऑफ अदर जीन्स, दूसरे जीन के हर एलील के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा. सो विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ मेंडल. नाउ इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस on the basis of their contrasting character, that is the monohybrid, dihybrid or trihybrid crosses. Thank you.